There's no way that you can practice, or no matter how hard you work, if you don't have the basis of that talent, you can never be a great singer. So it's a God gift to have a great voice and to be a great singer, because I did dabble in singing in my career, and I know how hard it was. It's really hard. I had to take a lot of technical helps, in order to come out all right. So Ashish, thank you so much for singing this. No, that's not a singing this wonderful song and picturizing this in Nepal and bringing the two cultures together. Thank you for your presence. You want a short one or a little long one? Long one. Well, there's I've done like over 280, 290, close to 300 films in the last 32 years. There was a time when I was churning out maybe 12 to 14 films in an average every year. And that went on for about good 12 years. I was putting in 16 to 18 hours every day, working in Nepali film, day and night. So in the last 32 years, I've done close to 300 films. And most of my films have been where I have portrayed a role of an average underdog and, representing the normal Nepalis. And that's one of the reasons why a lot of my fellow Nepalis, my brothers and sisters, they have put me, given a place in their heart, because they truly feel that I'm one of them. It's not even actor and fan relationship that I have with my people in Nepal. It's more like a family member in Nepal, and I really appreciate that. And I'm never tired of praising and appreciating the love and affection that I get from the people of Nepal. They've been a backbone, and in my career, they've been a motivating force. So most of the characters that I've done was for the underdogs, for the normal people, and it has forceful dialogues. So I'm going to say a few dialogues. I did a film called Sankar, in most of my films I'm either called Sankar or Arjun. So some of my fans, they even call me Sankar instead of calling me Rajesh, right, when they see me. Sattu Samarak Dushta Vinasak Pralayankar Huma Tero Lagi Sakchat Mritu Sankar Huma. Sarjan ko lagi naik, Sarjan ko lagi naik, Durjan ko lagi khalnaik, Dushman ko naam Ram naam Satya cha, अन्यायमा न्याय दिन राजेश दाइ आउँदैछ. Now I have a short one. साथीहरूको लागि यो हात सलाम, दुश्मनको लागि यो हात फलाम. Thank you. Thank you so much, sir. It's always wonderful to hear you, listen to you. I would like to welcome Thapa साहब to please come up on stage. आप थोड़ा सा आपका जो संघर्ष है और आपने जो नेपाल के लिए किया, कल आप जो बता रहे थे फ्लड के लिए, आपने इतना सारा काम किया, थोड़ा सा और हमें आशीर्वाद ओम शांति शांति शांति। विश्व में आज जो कोरोना का महामारी फैल रहा है, उसके लिए जितने लोग भी विश्व में कितने कोरोना काल में मर गए होंगे, एक सेकंड के लिए हम उनके लिए आत्मा के लिए शोक शांति रखते हैं विश्व में। थोड़ा खड़ा हो गए। वजह से आप यहाँ खड़ा होने की औकात हमें मिली है। हमारे छोटे भाई उनकी 24 घंटा सेवा करते थे, चंपा सिंह थापा, और एक नगर सेवक थे हमारे नेपाल के, तो मसल पावर भी थे। शिवसेना के पहले नगर सेवक केडी थापा थे, खेम बहादुर थापा थे, आप कोई पत्रकार लोग जानते होंगे। उनकी वजह से नेपाली लोग महाराष्ट्र में बहुत आना शुरू हुआ। बहुत से क्षेत्रों में उनको श्रमजीवी कामगार बोलते हैं, उसको काम मिलना चालू हुआ। तकलीफ नहीं हो इसके लिए बहुत से संगठन बनी। उसी तरह से नेपाली कामगार सेना बोल के एक संगठन बनाया गया शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे जी के हाथों से। नेपाली कामगार सेना का मैं संचालक हूँ, थोड़ा अध्यक्ष है। उन्होंने संजय राउत जी को दिया सलाहकार कि एक एमपी चाहिए भारत वर्ष में। हमारे कम से कम 1.5 करोड़ नेपाली यहाँ काम करते श्रमजीवी है, 10% तो उद्योगपति होंगे, उद्योगपति भी है, डॉक्टर भी है, साइंस भी है। अभी तो यहाँ बहुत बड़े लोग हमारे पहले पीढ़ी पे हम खाली खुकरी लेके आते थे,
अभी यहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन है, होटल है, डायरेक्टर्स है, अच्छे फील्ड में भी है। तो हमारे नेपाली लोग की ये खासियत है कि हम जहां भी जाए शक्कर के जैसा मिल जाते हैं। अगर गलत किया तो गर्दन को काट डालते, सब खून नहीं पी जाते। ये हकीकत है, ये शिवसेना की वाणी नहीं है, गुरखा की वाणी। गुरखा को प्यार करो तो जान दे रहे। क्या राजेश है, आज विश्व में आज भी हिटलर ने उस टाइम बोला था मेरे पास गुरखा होता तो विश्व जीत लेता था, मैंने 4 आना हार गया कि गुरखा मेरे पास नहीं थी। ये वो है आज भी जिसके घर में गुरखा काम करते। अब इतिहास देखो, मोदी जी के घर में भी जब मोदी जी कुछ नहीं थे, मैं व्यक्तिगत बाला साहब ठाकरे जी की कृपा से उनको मिलने का चांस मिला सीएम बनने से पहले, सॉरी पीएम बनने से पहले। उनको संभालने वाला भी नेपाली हमारा भाई। अभी भी नेपाली लोग हमारे बहुत से दिल्ली में, घर में, किचन में, ड्राइवर में, सारथी। श्रम कोई छोटा काम नहीं होता, तो श्रम नहीं करना चाहिए। श्रम तो श्रम नहीं करना चाहिए। हम श्रम देते हैं, खून नहीं बेचते। आप भी कोई देश में भारत से बाहर जा रहे हो, श्रम बेच रहे हो, खून नहीं बेच रहे हो, डरने की जरूरत नहीं। आपका कलम कला बेच रहे हो, आपको शरीर नहीं बेच रहे हो। आपको कोई सोचता है तो बुजदिल है, वो नामर्द है साला। तो नेपाली लोग आज यहाँ बोलना चाहता हूँ कि यहाँ राजेश जी ने मुझे निमंत्रण दिया। अचानक मुझे मेरा मित्र मालूम पड़ा, इनका भी नाम राजेश है। फोन आया, मैं कल दिल्ली जाने वाला था, सत्यपाल सिंह हमारे में कुछ काम था, कामगार के लिए। तो राजेश समाज जी का मेरा इतना पुराना रिलेशन है, कम से कम 25 साल का रिलेशन है। बहादुर पिक्चर का पहला शूटिंग में मुंबई आए थे वो, तभी से मित्र के थ्रू पहचान हुआ। जिस तरह उनको हस्ती थे, जो खानदान से ऐसा किसी ने बताया नहीं, और रॉयल फैमिली के खानदान से नेपाल में, उनका पिताजी राजपूत थे अमेरिका के, वो शौक से हीरो बने। और एक पैसे का घमंड नहीं। हम शिवसेना वाले थोड़ा घमंडी रहते, मैं उनको मिलने चले गए। अभी हमारे बाबा साहब के दरबार में तो सब आते थे, शाहरुख खान से लेकर दिल्ली, सब दुनिया दरबार में आती थी। हम उनको छोड़ते थे, दर्शन भी करते थे। बाबा साहब नाचने गाने वाले बोलते थे एक्टर लोग को, उससे ज्यादा दूर रहो बोलते थे। तो राजेश जी को मिला, उनमें वही गुण नहीं दिखा मैंने। वो कहाँ शूटिंग करना है भाई, महाराष्ट्र में क्या परमिशन चाहिए, साहब ने बोला उसको मदद करो। तो हम लोग उनके साथ 4-5 नेपाली लोग लगे रहे। हमारे अशोक सिंह नेपाली थे, संपर्क प्रमुख नेपाल शिवसेना के, अभी भी है उद्धव जी के साथ। तो उनका पहला पहचान था, उनके थ्रू हुआ। हम महाराष्ट्र में शूटिंग किए। ये आदमी में ऐसा गुण देखा हमने, गुरुचित घमंडचित नहीं, तो हमने इनसे दोस्ती हो गई। इनका मैं फ्रेंड हूँ, बाकी एक्टर लोग को मानता है मैं, लेकिन ये एक्टर नहीं, ये इंसान है। ये नेपाल में भी जाओगे समय देते हैं, यहाँ भी आने का समय देते। छोटे गरीब को भी हमारे नेपाली, अभी कोरोना हुआ नेपाल में, कितना कोरोना को इन्होंने मदद किया, बेघर पेपर में आए। हमारे हीरो ने अभी बीच में हिंदुस्तान के नाम नहीं बोलना चाहता, उनको भी हमारे नेपाली ने ट्रेनिंग दिया कुंफू का। चिता सर नाम नहीं बोलता, आप समझ गए होंगे, हमारा कुंफू टीचर ने दिया। आप ब्लैक मनी व्हाइट करने के लिए दिखा रहे हो, इन्होंने घर से खुद का पैसे से मदद किया। यहाँ से बॉर्डर में जितने अटके थे, मैंने कितने हमारे बस से जा रहे थे, उनको उन्होंने खुद के खर्चे में बुलाया, लाखों रुपए मदद किया, लेकिन कहीं मीडिया में नहीं आया। इसको बोलता है मदद करना। हमारे शास्त्र में बोला जाता है हिंदुस्तान का कि एक हाथ से मदद करो तो एक हाथ को मालूम नहीं होना चाहिए। तुम गुण दिया तो गुण खत्म हो जाता है, ऊपर एंट्री नहीं होता है। आज कलयुग में कोरोना ने दिखाया कि आपको ऊपर बैंक बैलेंस होना जरूरी है। बैंक का बैंक बैलेंस कुछ काम नहीं आता है, पैसे से आप जान बचा नहीं सकते हो। ऊपर का बैंक स्विच वाला, नीली छतरी वाले, चाहे राम बोलो, रहीम बोलो, जीसस बोलो, ऊपर एक ही शक्ति है। रास्ता कोई रास्ते से जाओ, चर्च पहुंचना है आपको, यानी वहां पहुंचना है आपको, तो उनको खुश रखना है, उससे छुपा कुछ नहीं, कण कण में वो है। ये चीज हमने शिवसेना प्रमुख से सीखा। और राजेश जी को देखने वाला, उनको मैं छोड़ता नहीं, कोई आने वाला। हमारी टीम नेपाल के हमारे सरोवर है, वो सर है, हम सम्मान है। और बाकी हजारों एक्टर आते जाते हैं, उनकी गुरु अलग रहती, मिट भी जाते। आज 35 साल से 36 साल से टिके हुए, एक जगह में टिकना। पिताजी को मालूम है आज कितने साल से फाइट मास्टर कर रहे, कितने आए कितने गए। मैंने आपको बोला शिवसेना प्रमुख के साथ 32 साल रहा, 45 साल महाराष्ट्र में, आप समझने वाले उतने समझते, लेकिन वो आदमी वो फील्ड में कितना महाराष्ट्र के फील्ड में ऐसे ही है। तो मैं अजय जी को बोलना चाहता हूँ, जिन्होंने टीम बनाया, इनके वजह से हमारे नेपाल की हीरोइन का दर्शन हुआ। और राजेश भाई को बोला तो तुम्हारी जवानी में, उनको बोला जवानी दिख रहे ऐसे थे। आज भी राजेश भाई पिक्चर सही थे, नेपाल के हीरो को काम करने में डरते, डायलॉग नहीं बोल पाएंगे हम। डायरेक्टर साहब ने क्या बोलेगा, जैसा हकीकत सम्मान भी देते, उनके फैमिली बैकग्राउंड में डर है,
रॉयल फैमिली से, राजा किंग के खानदान से थे। और वो सबसे पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये किसी से ये नहीं कि मेरे को मत करो, ये छोटा एक्टर है, सबके साथ मिल जाते हैं। अरे जी धन्यवाद। और सबसे पहले टीम को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, हमारे नेपाली भाई को भी धन्यवाद, सबको भाई धन्यवाद, डायरेक्टर जी का धन्यवाद, विश्वकर्मा जी का, रामको गाना बनाने का पहले सबसे पहला नेपाली माँ देवानंद की याद है। मैं कल उनको बोल रहा था साहब के, देवानंद साहब भारत साहब के दोस्त थे, मैं बहुत बार छोड़ने को जाने को चांस मिला उनको। देवानंद साहब ने नेपाल के बारे में हर पिक्चर में उनका एक गाना होता था देवानंद का। नेपाल को पहचानने में देवानंद साहब का ही बहुत बड़ा हाथ है। महाराज जी का बहुत बड़े फ्रेंड थे वो, हमारे राजा महेंद्र जी के भी फ्रेंड थे, आपको तो मालूम, वीरेंद्र जी के, राजा जी का भी दोस्त थे। आज उसके बाद किसी ने नेपाल में ऐसा सोचा है हिंदू नेपाल का रिश्ता सुधरे। कलाकारों का कोई बॉर्डर नहीं होता है, कोई देश नहीं होता, सिंगर और कलाकार का कोई जात नहीं होता है। उसी तरह से आज हमारा भारत और नेपाल का रिश्ता बीच में थोड़ा खराब हो गया था। प्रधानमंत्री केपी ओली जी आए थे तो सारा चाइना के तरफ थोड़ा चले गए, चाइना ने खाना ज्यादा दिया, इंडिया ने कम दिया था, तो उधर चले गए थे। तो आज वापस हमारे देवा जी आए, शेर बाबू देवा जी कांग्रेस से आए, प्रधानमंत्री आए, हमारे मित्र है, वहाँ के तो घर के मेंबर है, वो अभी थोड़ा हिंदुस्तान से प्यार कर रहे हैं। हमारा बॉर्डर सुधर रहा है, सिस्टम सुधर रहा है, क्योंकि 90% कामगार लोग हम हिंदुस्तान में आते हैं, चाइना में तो जा नहीं सकते, वहाँ लैंग्वेज सोचना पड़ता है, पासपोर्ट बनाना पड़ता है। इधर हमारे लिए इतिहास ऐसा है भारत और नेपाल का, शायद आप मीडिया वालों को मालूम है कि नहीं, पासपोर्ट लागू नहीं है, हमारा खाली इंडियन आईडी लागू है। वो भी कब से, जब गंगा कांड हुआ तभी से, जहाज हाईजैक कांड हुआ, बोलते तुम हिंदुस्तानी हो, वो चाहिए हमको कि आईडी पूरा, तुम जन्म में कहाँ और कहाँ रहते, भारतीय हो, वो चाहिए। वैसे नेपाल का नागरिकता यहाँ आने के लिए इंटरनेशनल आईडी हो। दूसरा, हजारों किलोमीटर, 18,000 किलोमीटर खुला बॉर्डर है हमारा। आज भी ऐसे आधा खेत उधर है, आधा इधर है, गाय इधर चले जाते हैं। आज भी बेटी का शादी इधर होता है, इधर शादी होता है। हमारा एक सनातन धर्म का, धरती दली से बनी एक ही विश्व में ऐसा देश है, पासपोर्ट लागू नहीं। हम दूसरे देश में रहेंगे, अपने देश को प्रेम करते, सेम लगता है हमें। यहाँ कुछ भी रुकावट नहीं, संविधान में 1950 के संधि में हमें दिया गया है, आप रह सकते हो, यहाँ के प्रॉपर्टी ले सकते हो, यहाँ के कानून अगर 15 साल रह गया आप प्रॉपर्टी खरीद के आप नागरिकता बन सकते हो। वैसे इंडियन को नेपाल में है, हमारे कितने महाराष्ट्र लोग उधर है, गुजराती, नेपाल को डेवलप करने में हिंदुस्तान के गुजराती मारवाड़ी का बहुत बड़ा हाथ है, साउथ के कौम का बहुत बड़ा भी हाथ है उधर। नेपाल को बनाने में हिंदुस्तान का हाथ है, जो डेवलप हुआ है, कॉलेज है, स्कूल से। अब इसी तरह इन्होंने शुरुआत किया है देवानंद जाने के बाद। आज टूरिज्म बॉडी 90% नेपाल का हमारा टूरिज्म बॉडी है। पोखरा, बुटोल, रक्सौल, वीरगंज जो जगह है आज विकास हुआ, और हमारे इधर इतनी पानी है, 75% हमारा हिमालय विश्व में खाली नेपाल में, 25% दूसरे देश में हिमालय रेंज ऐसा हमारा है। और तो बहुत बेस्ट है सर, आप टूरिज्म बोलना, नेपाल सरकार से आपसे जो मदद चाहिए, राजेश हमारे जी का आइए, प्रधानमंत्री के दोस्त, मेरे भी वहां से बहुत अच्छा रिलेशन है। आपको नेपाल गवर्नमेंट से कई रुकावट हो, आधी रात को मुझे बोलिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो हमारी है, भारत सरकार में आप हो, अगर तकलीफ होगी, नेपाल भारत का रिश्ता में कहीं सुधार चाहिए, नेपाल को विकास करने में, हम भारतीय शिवसेना कभी भी आपको साथ देगा। और हमारा एक मुद्दा है वहां पे, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था, आप पत्रकार लोग इधर नोट करना, विश्व को एकमात्र देश हिंदू राष्ट्र नेपाल था। कुछ लोगों ने आज 13-14 साल से, 7 साल से हिंदू राष्ट्र को खत्म किया, उसके लिए आज वो सेकंड पाकिस्तान बनने के कगार में है। अगर वो हो गया तो भारत तो खतरा है। आपके माध्यम से मैं प्रधानमंत्री को बोलना चाहूँ, थोड़ा टाइम निकाल के ध्यान दे, क्योंकि वो हजारों किलोमीटर खुला है, पाकिस्तान से उधर नेपाल आएगा, नेपाल से हिंदुस्तान में आके बम फोड़ के अगर इधर जा सकता है, बांग्लादेश से नेपाल आएगा, नेपाल से इधर आ सकता है। तकलीफ किसको है? हमारे जैसे कामगार इधर आने वाले इंडियन लोग। तो वो नेपाल का वो जरा ध्यान दे, भारत का पॉलिसी कोऑर्डिनेटिव टीम है, अभी तक ध्यान नहीं दे रहे। वहां नेपाल में जो हो रहा है, जो पाकिस्तान का लोग, बांग्लादेश के लोग आके उधर जगह खरीद रहे, होटलें खरीद रहे, वहां के नागरिकता ले रहे हैं, वो थोड़ा देखने वाली चीज। भारत सरकार को समय रहते ही देखे, आप अमेरिका देख रहे हो, लेकिन आपका बाजू का घर में क्या हो रहा है वो भी देखना जरूरी है। मैं प्रधानमंत्री को हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से, माननीय हमारे ओमकार परिवार के, विश्व के सबके परिवार के हो, और नेपाल में भी ध्यान दे, नेपाली जनता को भी ध्यान दे। खतरा है, हिंदू राष्ट्र रहेगा तो सर है, सबसे बड़ा पहाड़ है नेपाल का। वहां से चाइना चाहता है नेपाल को ले, अमेरिका चाहता है नेपाल को ले। क्यों चाहता है? चाइना चाहता है भारत को तोड़ना, अमेरिका भी चाहता है भारत को ही तोड़ना। तो बेस बनने नहीं दे, उसमें ध्यान दे जा रहा भारत सरकार नेपाल के ऊपर। और सबसे पहले मैं ये विषय नहीं था, बोल दिया, माफी चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा
उस इंसान से जुड़ा हुआ हिंदू हृदय सम्राट बोले बाला साहब ठाकरे जी विश्व को शांति और विश्व को हिंदू राष्ट्र बनाने को निकले थे और महाराष्ट्र को विश्व शक्ति बनाने निकले थे। आज राजेश भाई धन्यवाद, आपके वजह से इन लोग से मुलाकात हुई। चिता जी मेरे पुराने मित्र मिले, सब लोग से मुलाकात हुई है। सोच रहा आपका नाम बोलिए, संदीप जी मुला जी, ये भी बहुत दिनों के बाद मिले। हमारे एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर है आपके साउथ के नायक सर, आइए आइए आइए, 2 मिनट आप आइए ना, आइए सरकार, आइए आइए आइए। इन्होंने पिक्चर बनाया है, साउथ का मूवी बनाया है, हमारे यहाँ के कंस्ट्रक्शन में बिजनेस में अच्छा बिजनेसमैन है सर, इनको जरा सत्कार कीजिए। इन्होंने साउथ का पिक्चर बनाया देता हूँ और आपको सबको मैं कुछ ज्यादा बोला माफी चाहता हूँ और कुछ गलत बोला है तो मीडिया से माफी। विश्व के नेपाली लोग आपके लिए सेवा के लिए है, लेकिन आप भी हमारे सेवा के लिए रहिए, ये हम आशा करते हैं। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय महाराष्ट्र। हमारे बीच एक टीम, जस्ट होल्ड ऑन, एक इम्पोर्टेंट मेंबर मिसिंग थे, वो आगे हैं, मैं उनको आमंत्रण करना चाहता हूँ। अराफात भाई प्लीज, लेट्स गिव अ बिग हैंड। जिन्होंने गाना लिखा है अराफात भाई, उन्होंने समझा और मेरा कॉन्सेप्ट समझा और उन्होंने गाना लिखा है। तो भाई हेलो एवरीवन, बस राजेश भाई ने गाना लिखना तो अपना प्रोफेशन ही है, काम है, लेकिन राजेश भाई ने एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए रिश्तों की बात की कि रिश्तों को जोड़ना है, 2 कंट्रीज के रिश्तों को बेहतर करना है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब आप पर्पस के साथ कुछ करते हैं काम, तो आपको भी एक इंटरनल खुशी होती है। तो मैं सिर्फ 4 लाइन जो यूं ही मतलब बचपन से सब हम लोग सोचते रहते हैं, क्योंकि नेपाल से तो हमारा रिश्ता पुराना है, कि फरिश्ते वाकिफ है मेरे एक सवाल से कि इसके सीने में हसरत है कई साल से। थोड़ा फनी है लेकिन फरिश्ते वाकिफ है मेरे एक सवाल से कि इसके सीने में हसरत है कई साल से, कि जो रिश्ता है रसगुल्ले का बंगाल से वही बन जाए हिंदुस्तान का नेपाल से। तो जैसा आप जानते हैं कि दीवानगी है नेपाल की, हमने गाने में वही लिखा भी है कि जिसने भी देखा एक नजर उसको ये यकीन है नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हसीन है ना। आसमां को है खबर जानती है, जानती जमीन है नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हसीन है। तो नेपाल की जब खूबसूरती जब राजेश भाई ने कहा, मैंने गूगल करना शुरू किया, काम पे लगा दिया राजेश भाई ने, और जब मैंने नेपाल को सर्च किया, जैसे इंडिया में पैदा होने की मुझे बहुत खुशी है, लेकिन थोड़ा नेपाल पे लालच आ गया था, थोड़ी सी चूक हुई है, थोड़ा सा उधर होता तो। बट राजेश भाई ने कहा कि आप दोनों कंट्री के मजा लेंगे और हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे। तो नेपाल में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हिंदुस्तान और नेपाल के लोगों के रिश्ते से बनेगा, एक कामयाब प्रोजेक्ट, और जिसके मतलब जिसकी बुनियाद डाली है राजेश भाई ने। हम चाहते हैं कि मीडिया इसको, इस न्यूज़ को, क्योंकि आजकल भाई मोहब्बतों की बड़ी ज़रूरत है, तो इसमें आप लोग बहुत बड़ा रोल पैदा कर सकते हैं। आपको जो चाहें वो कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा कीजिए कि अब मोहब्बत की बात हो, हिंदुस्तान की बात हो, नेपाल की बात हो। थैंक यू सो मच। Thank you, Aراfaत. I would like to invite Chita Bhai to come and say a few words. Good evening. First of all, I thank you so much for coming over here and giving us a beautiful song from the land of Nepal. And I would like to say that I am in this industry from last 40 years, teaching, training martial art for 5 generations, from Dilip Kumar Saab to Ritik Roshan's son, Govinda's son, all of them. And it's a great privilege. I came from Karnataka, and in Bombay, when I was entered, it was so much of hesitation and taunting, everything. On top of that, you believe in yourself, focus on your work, you will move ahead. The same thing I am going to tell you all. So many things will come up. Rajesh bhai, you have to step up and go down. Thank you so much. गांधी पीपल I would like to हमारे भी गांधी पीपल call forward a few friends and just to honor them and for all the support and help they have, supported me in
my new venture. So I would like to just call Shahid Bhai. Wow, wow. Hariram Thakur, घूम के आ जाओ. He is acted in my film as a Birju Bhaiya. So he is the only member apart from our crew for the film. He has come all the way from Delhi to support. Aiye Birju Bhaiya. So his character's name is Birju Bhaiya. Of course, my wife, she'll be very shy to come. Amisha, please come. She's also acted. My daughters are acted in my film. So my wife has also had a small role in the film. So everybody else who supported me. And right now I want to call a very, very dear friend. वो उनसे भी बहुत कम समय हुआ मिलके, but very inspiring gentleman and बहुत support कर रहे हैं मुझे, विकास भाई please. He will tell you about himself. Hi, this is Vikas. You can call me Vicky from a small business house in India, and met Rajesh ji through Shahid, in fact, for some business work, and really like the thought what Rajesh ji has in his mind. We don't aspire to think that way, we don't have that mind or the culture where we can appreciate some other country or somebody else's work like Rajesh ji or anybody else. We don't understand the language or we don't understand their culture. But what Rajesh ji is doing today is something tremendous, and I hope we've got certain things planned up in our sleeves, and I hope if we can do something good together for India as well as for Nepal, it will be a great pleasure for me to be associated with you, and keeping my fingers crossed for some projects that we can work on together. Yeah, God bless you. We can talk about it and we can get it done. God is kind to be with us, and if we can do something together, definitely we will do it together, right? God bless you. Thank you so much. Thank you. So finally, I would like to call the director of my film, Sandeep Balani ji, to come forward and say a few words and talk about a little about. मैंने वही जो मैंने अपनी शुरुआती स्पीच में गई थी कि मैंने वो पूछा कि किस लिए करना है. गाने तो बहुत हिट हैं, आपने देखा होगा कि मेरा एक गाना है जो 1.4 बिलियन भी है यूट्यूब पे वास्ते नाम से, कई सुपर गाने मैंने दे दिए. लेकिन जब किसी मकसद के तहत आपको आवाज़ दी जाती है तो वहाँ पे कलाकार का, वहाँ पे फनकार का, वो जो फनकार की जिम्मेदारी है वो बहुत बढ़ जाती है. और जब राजेश भाई ने कहा कि दो खूबसूरत कंट्री के तमाम खूबसूरत लोगों को जोड़ना है, उसके लिए बेहद खूबसूरत गाने की ज़रूरत है. तो हम सोच सकते हैं, लेकिन नेपाल की अच्छी बात यह है कि नेपाल ने अपने सीने में इतनी खूबसूरत मनाजिर छुपा रखे हैं कि आपको बहुत आसान हो जाता है बात कहनी. तो मैंने वही जो आजकल गूगल सर्च किया, नेपाल को देखा, लिखते वक्त बहुत खुशी हुई मुझे कि बहुत कुछ है बयान करने के लिए, लेकिन वही है कि गाने की लिमिटेशन होती है कि आपको 3-3.5 मिनट में अपनी बात कहनी है. और ट्राई माई बेस्ट कि किस तरह से आप लोगों को पहुंचा जाए. एक बेहतरीन कोशिश की है मैंने, और जिस तरह से लोग मुझे मेरे कान में आगे सरगोशी कर रहे हैं कि बहुत अच्छा लिखा है, तो लग रहा है मैं कामयाब हो गया. तो आई होप कि हमारी कोशिश थी जोड़ने की, इस कोशिश को आप एलैबोरेट करेंगे, पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे. सिर्फ नेपाली इंशाल्लाह जब हिंदुस्तान और नेपाल एक हो जाएगा तो हम इस मिशन को बहुत आगे बढ़ा देंगे. अभी बहुत सारे प्लान्स हैं, शायद क्रिकेट वगैरह का भी. तो राजेश भाई ने और तमाम चेहरों को, गाने का नाम चेहरा है, और इस चेहरे का एक ही मकसद है कि हम आप सबके चेहरे पर खुशी की लकीरें बिखेर दें. बस नटशेल में यही कहना चाहता हूँ कि आप सब हमारे साथ आएँ तो हम कामयाब हो पाएंगे. थैंक यू सो मच. आशीष, आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? आपकी आवाज़ है और बहुत ही बेहतरीन लग रही है. सर बीच में आ जाइए. क्या दिक्कत होगा सर? बताइए गाने के बारे में, एक्सपीरियंस कैसा रहा है? नेपाल में शूट हुआ है कि आपने म्यूजिक किए थे तभी, या फिर जी? तो इंडियन आइडल के बाद बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला जो एक विजन कैरी करते हैं, जो जिनके कुछ गोल्स हैं, और राजेश सर वॉज वन ऑफ देम. एंड उनकी एक मुझे यूनिक बात ये लगी कि उनका जो पैशन है और जो ड्राइव है वो मतलब इस उम्र में भी मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एनर्जी है हम अगर कभी मैच कर पाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है.
और उन्होंने मुझे इतना फ्रीडम दिया, इतना कॉन्फिडेंस दिया कि मैं ये कर सकता हूँ। और इतने बड़े मंच पे आज ये गाना लॉन्च हुआ है और इतने बड़े लिरिसिस्ट का मुझे साथ मिला अराफत महमूद साहब कि मैं बहुत खुशनसीब समझता हूँ उनको और आई एम इनक्रेडिबली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ये कंपोज करने की जर्नी भी बहुत खूबसूरत रही। इस दौरान मुझे, जैसे मैंने कहा कि एक शो की वजह से मेरा जाना हुआ नेपाल, और उस दौरान मैंने देखा कि कितनी खूबसूरत कंट्री है नेपाल, और उससे ही इंस्पिरेशन लेके मैंने थोड़ा कंपोज करने की कोशिश की। और एक हम्बल एफर्ट है, आप ज़रूर इसको सुनिए और जो आपको लगे वो ज़रूर मुझे ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि म्यूज़िक कंपोज कर पाना ये मेरे लिए एक लाइफ का सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। और ये राजेश सर जैसे बड़े बड़े लोग का अगर साथ हो तो 100% पूरा। आशीष जी, इंडियन आइडल के दौरान बहुत सारे लेजेंड्स को मिले, अरफात जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सीखा आपने? आराफत सर के साथ मैंने पहला गाना किया, हाँ ये पहला गाना किया था मंजूर दिल नाम का। उससे पहले मंजिलों का जुनून। अरे बाप रे, मंजिलों का जुनून, करेक्ट। तो मारुति सुजुकी का प्रमोशनल सॉन्ग जो था वो भी आराफत भाई ने लिखा था। उसके बाद बाहर आने के बाद पवंदा और मेरा जो फर्स्ट कंपोजिशन है साथ में 18 मिलियन जी, अभी 18 मिलियन पे चल रहा है। सभी लोगों को बहुत अच्छा प्यार मिला और इतने एस्टेब्लिश्ड और इतने सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट है आराफत भाई की, उनके अंडर हम भी छत्र छाया के नीचे हम भी थोड़ा बहुत सीख रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोगों के साथ काम करते हैं खुद, और उनके पास जो एक थॉट प्रोसेस है वो इतनी यूनिक और इतनी खूबसूरत है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे अगले 50 गाने अगर मैं कंपोज कर रहा हूँ तो वो सारे के सारे आराफत भाई लिखे हैं। तो इनके टैलेंट से मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। तो अगर 2 लाइनें हो जाए आपकी आवाज़ में, ये वाला और क्या 2 गाने कभी कभी अदिति जिंदगी में यूं ही कोई अपना लगता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ गए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे मुस्कुराए, कैसे हंस दे खुश होके, और कैसे कोई सोच दे that everything's gonna be okay। कभी कभी तो लगे जिंदगी में रही ना खुशी और ना मजा, कभी कभी तो लगे हर दिन मुश्किल और हर पल एक सजा, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसुओं को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच दे that everything's gonna be okay। ये गाना मैं ज़रूर सुनाऊंगा, बट मैं चाहता हूँ कि बिफोर मैं गाऊँ उसके बाद कोई और आया कोई और बोले। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि इस गाने को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, इसको बहुत शेयर करें, हर जगह पे इसको फैला दीजिए, और प्लीज़ आपके जो ऑनेस्ट रिव्यूज़ है वो हम तक पहुँचाएँ, क्योंकि आगे बहुत सारा काम करना है और आप सबके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसकी 2 लाइनें बस जो कोरस है वो सुना देता हूँ मैं कि जिसने देखा एक नजर उसको भी यकीन है, नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हंसी है, आसमां को है खबर और जानती जमीन है, नहीं तेरे जैसा कोई दूसरा हंसी है। थैंक यू आइए सर आप चलिए। फ्रेंडशिप के ऊपर ये गाना है और शूट भी वहाँ पे हुआ है, बहुत ही अच्छी लोकेशन है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? वेरी हैप्पी, क्योंकि ये हिंदी सॉन्ग है और हिंदी इंडियन टीम ने बनाया हुआ है, मगर प्रशंसा नेपाल का कर रहा है और नेपाल की रहन सहन दिखाया है। तो मेरे ख्याल में ये कल्चरल टाइम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। तो बहुत खुशी हुई कि इंडियन सॉन्ग, इंडियन टीम और नेपाली टीम मिल के दोनों देशों को कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, मदद भी पा रहे हैं। जो आफ्टर लॉन्ग टाइम यू आर कमिंग टू मुंबई, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस एंड क्या कहना चाहेंगे मुंबई के माहौल के बारे में, इंडिया के? मुंबई में तो एक अलग ही एनर्जी है, ये तो वाइब्रेंट सिटी है, यहाँ एनर्जी है, यहाँ अच्छा है, यहाँ सब बैकग्राउंड, सब स्ट्रैटा, सब किस्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रहन सहन देखने का मौका मिलता है, लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, मगर फिर भी सब लोग जितने भी मुंबई में रहते हैं सबको ये लगता है कि मुंबई हमारा है और ये हम ही
अच्छा एनर्जी मिलता है यहाँ के। यहाँ का खान पीन बहुत अच्छा लगता है मुझे, यहाँ के स्ट्रीट फूड्स बहुत अच्छा लगता है। राजेश जी ने हमारा देखभाल बहुत अच्छे ढंग से किया। वहाँ हमारे का जो खास खाने का चीज़ होता है वो सब हमें खिलाया है। So any plans to do a Bollywood film or any क्यों नहीं, मैं तो acting कलाकार हूँ, work with- मैं हर तरीके की फिल्में करना चाहता हूँ। और राजेश जी और हम कुछ प्रोजेक्ट का प्लानिंग भी कर रहे हैं। एक गीत तो हम कर ही रहे हैं और प्रोजेक्ट भी हम करेंगे, क्योंकि हमारा तो लाइन ही यही है, फिल्में बनाना मेरा पेशा है और राजेश इसमें शामिल है। तो हम दोनों कुछ इंडो नेपाल प्रोजेक्ट हो सकता है, मुझे लगता है। Niti, how was your experience on working on this song? And tell us about this experience in India. I grew up watching Bollywood movies in Nepal, so I'm quite similar. But the whole project was so beautifully done. I made good friends like Roshni and Rajiv and the good member. I actually came to Mumbai a month back for work, for my own personal work, and then I happened to meet Rajesh. So it was unplanned. We met and he asked me like if I would be interested to do this music video, which it revolves around the relationship between the two countries, Nepal and India. And I instantly said, okay, why not? It's a big project. And they came over to Nepal, and we had such a great time shooting. It was like we were like a family shooting together, and I had such an exceptional great time. And I would love to work with the team again in the future. Who is your favorite actor in Bollywood? Ranveer Singh. I really like his style, and I am head over heels for him. He is an amazing actor. Roshni, how was your experience? कैसा था experience नीति के साथ and पूरी cast and crew के साथ? आप लोग नेपाल भी गए थे। हाँ जी, हाँ जी। इस बारे में कुछ बताएं हमारे audience So पहले तो मैं थैंक यू बोलूँगी सर, मैं जितना बार भी थैंक यू बोलूँ मुझे लगता है बहुत कम है, क्योंकि आई हैव मेड वेरी ब्यूटिफुल फ्रेंड्स देयर एंड द प्लेस इज़ अमेजिंग। और मुझे सच में फर्स्ट टाइम ऐसा पता चला है कि इंडिया के बाहर भी ऐसा कंट्री है जो बिल्कुल इंडिया जैसे ही है। वहाँ का कल्चर, द वे दे स्पीक, द वे दे वेलकम, लाइक हम लोग बोलते हैं अतिथि देवो भव, सो दे ऑल्सो फॉलो दैट, यू नो। एंड या इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। एंड फर्स्टली व्हेन आई हर्ड द सॉन्ग आई loved the song so much. I was like, I'm glad that I got this opportunity and I'm going to grab it right now. I'm not going to let it go. So yeah, it was amazing, and the entire team, as you said, there's nothing different that I would like to add, but we are a family, and I've worked so many more projects together. Yeah, and thank you, Ruby. She has been the most wonderful ever. Ever. She's so kind, she's so generous, she's so sweet, and she's very talented. She actually took great care of the team, along with her team. She was the one who put a lot of effort to make us feel very comfortable and like home there. Thank you for that. So any plans to collaborate with Rajesh sir and Niti again? Why not? Why Doing a not? part 2 of this song in India. Yeah. So now the Nepali team is coming to India, and that's going to be another part 2 of the song. So, Now this time we're going to show our India, Bharat Mata Ki Jai, in a very different way with a beautiful song again. Thank you so much. Thank you. Rajiv, राम रुक जा यार। साइलेंस प्लीज। अरे इसको दे रहा है विनोद यार, गाड़ी दे रहा है विनोद, क्या कर रहा है? चले शुरू करो। माइक तो रहा है ना। बताइए कि नेपाल में आप लोगों ने शूट किया है और जो है राजेश सर से मिले आज, नेपाल के सुपरस्टार है। Were you nervous before doing this song, और क्या कहना चाहेंगे?
First of all, Rajesh sir, acting तो नहीं कर रहा. We were not nervous. In fact, we always knew from Rajesh bhai that Rajesh Amarza is a very down-to-earth person. Of course, we know his. तो सेंटर में देखिए. We know his the lineage he has and the kind of fan following he has in Nepal. So, but then us person, we have understood what kind of a guy he is. We were never nervous, and the work was shooting him. We were there for, in fact, we were there for only 3 days. That is the saddest part. We wanted to be there for a week at least, yeah. So we had to finish it in such a short span of time, where we were shooting day night. So we couldn't actually explore the whole of Nepal. That is one thing which still haunting us, in fact. So, but then we are planning to go there and shoot there again. So we're gonna do that next time. And about the love which we were showered when we were, for example, if you're going for a jog on the street also, and the love they are giving us is unparalleled. It's so good, it's so good. You feel like you are walking on the streets of India. So that is the kind of warmth which we are getting from there. So it was always good, and thanks to the director and the co-actors, we were always there in the comfort zone. We could give our best, and thank you very much. Thank you. Yes, next. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हुआ है. सब नेपाल दोस्ती दिख रहेगा और मजा है. तो इसमें नेपाल का ब्यूटीनेस सब कुछ देखा है. और नेक्स्ट टाइम दूसरे सॉन्ग में आने वाला है. अभी इंडिया का ब्यूटीनेस क्या है सब दिखाएंगे उसमें. तो अभी बॉलीवुड में वो सॉन्ग मूवीज रहती है वो सब देखते रहते हैं. नेपाल का भी उधर मूवी आएगा, उधर का भी होगा. बहुत अच्छा रहेगा. देखें हमारे डायरेक्टर सर सर गार्जियन भी सब भाई हमारे थैंक्स कहना चाहते हैं सबको. थैंक यू सर. So गेस्ट भी यहाँ पर है. शुभ मैम क्या कहना चाहेंगे? आपने गाना देखा, गाने के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर कुछ बताया आप. बहुत प्यारा है, वॉइस बहुत प्यारी है, शूट बहुत अच्छे से शूट किया गया है. प्रॉपर आर्टिस्ट, लोकेशन, एवरीथिंग इंक्लूड करके दिखाया है. मैंने कई बार क्या होता है सॉन्ग शूट होता है बट या तो आर्टिस्टिक दिखते हैं या फिर लोकेशन ही दिखती है. इस गाने में ओवरऑल सब कुछ परफेक्ट था. वॉइस से लेके, लोकेशन से लेके, एक्टर से लेके, डायरेक्शन से लेके, एवरीथिंग सुपर. अब मैं इस सॉन्ग के लिए यही कहना चाहूँगी कि जो मेरा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया है, मैं जहाँ जहाँ पे हूँ मैं इस सॉन्ग को प्रमोट करूँगी क्योंकि मुझे गाना पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया है डेफिनेटली. और मैं चाहूँगी जो हमारी ऑडियंस है वो भी इस सॉन्ग को देखकर अपना ढेर सारा प्यार दें. और तो मैं पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी.